Hello friends, how are you doing today? I'm your Ramandeep Singh on your favorite channel IELTS Coaching, and I've been requested by students to make a video on the reading module and in which I should be discussing with you how to handle diagrams. I must tell you that already there are lots of reading videos available on this channel. And on this channel, if you check out my IELTS reading playlist, you will definitely find dozens of videos. Must follow them to clear your doubts and learn effective strategies, tips and tricks related to reading. There must be a couple of videos in the playlist already related to this question type, but in this video once again I'm going to share this particular question type, and for this I have chosen the reading passage, the Anderton boat lift. आई मस्ट से कि आपने पहले भी रीडिंग करते हुए ऐसा कुछ कॉन्टेक्स्ट ज़रूर देखा होगा, बिकॉज देर आर मोर देन 3 to 4 पैसेजेस जिसमें इस चीज़ की बात हुई है. इट इज़ अबाउट बोट लिफ्टिंग. यूजुअली अर्लियर ऑन बोट्स का जो इस्तेमाल था फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस होता था, जो आज भी होता है. यूजुअली होता क्या है कि एक कैनाल थोड़ा अपर लेवल पर होता है, सो जिसकी वजह से बोट डायरेक्टली उसमें ट्रेवल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से द बोट्स हैव टू बी लिफ्टेड टू द अपर कैनाल, जिसकी वजह से अलग अलग मैकेनिज़म्स का इस्तेमाल होता है. और यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही पढ़ेंगे जिसमें एक कैनाल से जो बोट है उसको लिफ्ट करके दूसरे कैनाल में मूव किया जाता है, सो दैट वो आगे अपना जर्नी जो है वो कंटिन्यू रख सके. So what we are going to read about is the Anderton boat lift, and you can see this picture in front of you. Questions from 20 till 24 that we need to deal. Before you move ahead and start looking for the answers, I always appreciate that if you have a thorough check of the diagram and try to learn the mechanism that how it is working. आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है कि exactly इसके अंदर हो क्या रहा है. If you can understand it really well, that would really help you to figure out the correct answers. जहाँ पर आपको लगता भी होगा कि ये वर्ड आंसर हो सकता है, बट आपका ब्रेन कहेगा कि मैकेनिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात नहीं बनती है, जिसकी वजह से आप वो आंसर नहीं लगाओगे. सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड that how this particular diagram or this process is working. Another thing जो बहुत student mistake करते हैं, that they fail to follow the arrow, that is the indication के लिए आपको जो arrows दे रखे हैं वो पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि किस चीज़ की तरफ इशारा करें. इफ़ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 22, ये जो चीज़ गोल गोल नज़र आ रही है वो पर्टिकुलरली इसके ऊपर एम्फसाइज्ड है कि इसको क्या बोलते हैं. And if I talk about question number 24, if you can see that square thing that is जो रोप के साथ हैंग कर रही है, तो उसके लिए पर्टिकुलरली पूछा गया है कि ये क्या चीज़ है. यहाँ पर तो थोड़ा सा एविडेंट है, क्लियर है, लेकिन देर आर डायग्राम्स इन विच एरो थोड़ा लंबा होता है, इन बिटवीन भी 2-3 चीज़ें आ जाती हैं वो, लेकिन एरो जो है वो सेंटर वाली चीज़ के बारे में पूछ रहा होता है. बट स्टूडेंट्स आउटर पे जो भी नज़र आता है उसको एज आंसर लगा देते हैं, सो इट वुड डेफिनेटली बी अ रॉन्ग आंसर. मेक श्योर वेयर द एरो इंडिकेट्स पिन पॉइंटेड थिंग जो है, यू हैव टू आंसर दैट ओनली. इन क्वेश्चंस को आंसर करना इजी रहता है बिकॉज यू डोंट हैव टू रीड द एंटायर टेक्स्ट टू लोकेट द आंसर्स. यू हैव टू फिगर आउट one particular passage in which you can read about how it works. So there would definitely be one passage saying that how the mechanism works. So you have to figure out which paragraph is that, and once you get to that paragraph, then start reading and figure out the correct answers of the given questions. So for this particular passage, there is section number 4 in which the mechanism is there, and from there you can extract the answers to all these 5 questions. What I'm going to do is, I have just mentioned you the strategies. First thing, you really need to understand how it works. Number 2, you need to figure out what the arrow is indicating. Another thing is that when you are looking at the answer, you will realize that most of the time the answers are noun. So you have to check out if it is talking about a plural
or a singular. So according to that, you put the answers. And that's pretty much all that you really need to take care while handling this question type. Do not read unnecessarily. Wherever it is necessary, just read that part and try to fetch the correct answer. So what I'm going to do now, for these 5 questions, I allow you approximately 3 to 4 minutes now. Read the passage thoroughly and answer these questions on your notebook right now with me. और उसके बाद ईच एंड एवरी क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर कहाँ पर है और क्यों है और कैसे हमने अपने आंसर्स जो हैं करेक्ट हैं वो ढूंढने हैं. आई रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस. डू नॉट स्किप द वीडियो. जब भी आप मेरी रीडिंग की वीडियो देखें, प्लीज़ पहले ध्यान से स्ट्रेटजी समझें, फिर उसको खुद करने की कोशिश करें और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को देखें. दिस वे यू विल रियली इम्प्रूव. अदरवाइज हेस्ट से इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी. तो अभी आपका टाइम स्टार्ट होता है. ऑनेस्टली शेयर करना कि आपने क्या स्कोर किया था और उसके बाद कंटिन्यू कीजिए मेरे एक्सप्लेनेशन के लिए.
वेल आई होप आपने अपने 5 के 5 आंसर्स लगा लिए हैं और अब मेरी बारी है मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूं। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से और हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ऊपर एक लंबी बार है जिसको वो इंडिकेट कर रहा है और इसी के ऊपर ही आपको वो छोटे छोटे गोल से 5-6 जो नज़र आ रहे हैं। आई होप कि जिसको भी थोड़ी बहुत साइंस की समझ है वो समझता है कि इन गोल चीज़ों को क्या बोलते हैं। बस हमने ये देखना कि पैसेज में भी वही वर्ड यूज़ हुआ या नहीं हुआ। स्टार्ट करते हैं पैसेज को रीड करना। A new lift was built over the top of the Victorian structure utilizing the Victorian front and rear column। तो ये जो हमें जो नज़र आ रही है लिफ्ट सिर्फ उसकी बात ही कर रहा है। अब बात आ गई तो मेन स्ट्रक्चर की। The main structure had strong A-frames at either side of the new lift to support the enormous weight of platform that now formed the top of framework। I hope you understood it। ईदर साइड मतलब दोनों साइड। ए फ्रेम यहाँ पर शेप देखने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों तरफ एक ए शेप बनी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर शायद मेरे पास पहले आ गया क्योंकि यहाँ पर वो 21 की बात कर रहा है। ए शेप दोनों तरफ आपको फ्रेम्स नज़र आएंगे टू सपोर्ट द इनॉर्मस वेट, और इसके ऊपर वेट किसका है? ये जो बहुत बड़ी चीज़ हमें नज़र आ रही है इसके लिए उसने वर्ड एनॉर्मस भी यूज़ कर लिया। सो आई वुड से एनॉर्मस वेट ऑफ द प्लेटफॉर्म, और इसके लिए उसने ये भी यूज़ किया है टॉप ऑफ द फ्रेमवर्क, मतलब बिल्कुल टॉप पर आपको क्या नज़र आएगा? प्लेटफॉर्म। सो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बन गया प्लेटफॉर्म और 21 का आंसर बन गया ए फ्रेम्स। आई थिंक आप बिल्कुल सेम ही यूज़ करें ए फ्रेम्स जैसे बुक में है, बिकॉज़ हम बेटर है कि उसको चेंज नहीं करें, इससे शायद एग्जामिनर आपके मार्क्स कट भी कर सकता है। हमेशा वही वर्ड यूज़ करें, ना उसका पार्ट ऑफ स्पीच कुछ भी मत चेंज करें जो बुक में है। स्टिक टू दैट। नाउ 22 के लिए हम देखते हैं क्या है हमारे पास। फ्रेमवर्क के टॉप की बात आ गई, कोलन लगा है मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन आगे भी है। ऑन इट was located the new operating mechanism which includes 72 pulleys weighing up to 35 ton each। So obviously हमें पूरा नहीं नज़र आ रहा, और भी होंगी। That means these are out of the 72 हमें जितनी नज़र आ रही हैं, so these are definitely pulleys, PULLEYS, जिनका जो वे है वो कितना हो सकता है? 35 tons। क्वेश्चन नंबर 23, अब ध्यान से देखिए ये स्ट्रक्चर आपको क्या लग रहा है? एक कंटेनर टाइप सा है कुछ जिसके अंदर पड़ा हुआ है, और अगर आप और थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें ये समझ आ रहा है कि एक जो नीचे एक है रिवर वीवर और ऊपर है ट्रेंट एंड मर्सी कैनाल। तो जो नीचे और ऊपर की बात जो मैंने आपसे स्टार्ट में की थी, दैट हाउ इट वर्क्स, दैट इट टेक्स द बोट फ्रॉम द लोअर कैनाल टू द अपर चैनल। सो हियर इट इज। सो ईच ऑफ द बोट कैरिंग टैंक्स, ईच की बात हो गई, दैट मीन्स देर आर मोर देन वन, और यहाँ पर हमें 2 नज़र आ रहे हैं, हर एक की बात कर रहा है। सो ईच ऑफ द बोट कैरिंग टैंक्स वॉज नाउ सस्पेंडेड ऑन वायर रोप्स, और ईजी हो गया, सस्पेंडेड मतलब बंधा होना। एंड हेयर यू कैन सी द रोप्स, दोनों ही साइड के ऊपर इसके रोप नज़र आ रहे हैं। सो इट इज़ सस्पेंडेड, लटका हुआ है उसके साथ। एंड हेयर इज़ योर आंसर। सो बोथ ऑफ दीज आर व्हाट? दीज आर बोट कैरिंग टैंक्स। नाउ फाइनली वी आर लुकिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 24th आंसर्स। ये भी चीज़ जो है वायर रोप के साथ लटकी हुई है, और अब ध्यान से देखिए ये एक साइड है इसकी, और दूसरी साइड जहाँ पर दूसरा हमारा टैंक है उसके लेफ्ट साइड पर भी आपको ये चीज़ नज़र आ रही है जो छोटी सी फ्रेम के पीछे छुपी हुई है। आपने कभी लिफ्ट का मैकेनिज्म देखा है? डेफिनेटली आप लिफ्ट में बैठे हुए हो और शॉपिंग मॉल्स में जाते हो, आप कभी भी ध्यान से देखिए जो ग्लास वाली होती है आगे पीछे नज़र आता है। एक साइड पे लिफ्ट आपकी ऊपर जाती है, ऑन दी अदर साइड बहुत सारा हैवी लोड जो वेट होता है वो नीचे जा रहा होता है। ऐसे ही जब आप लिफ्ट से नीचे जाते हो आपकी लिफ्ट नीचे जाना शुरू कर देती है, एंड सेम अमाउंट ऑफ वेट है जो वो ऊपर चले जाता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो लेट्स फिगर आउट व्हाट इट इज। And here it says, ran from the tank to the top
of the lift around pulleys and down to cast iron weights. So which ran from which क्या चीज़ है हमारी वही चीज़ जो टैंक है ran from tank to the top of the lift टॉप तक आ जाते हैं अराउंड पुली सो पुली के साथ साथ वो चलती है जो रोप है एंड डाउन टू कास्ट आयरन वेट एट द साइड ऑफ द स्ट्रक्चर सो हमारी स्ट्रक्चर की साइड पर क्या है कास्ट आयरन वेट मतलब बहुत हैवी आयरन जो है उसका जो वे है वो नीचे जाता है और हमारी बोट लिफ्ट है वो ऊपर जाती है हाउ वॉज दैट आई होप यू अंडरस्टूड इट मेरे बताने से पहले ही आप काफ़ी हद तक आपने एक सही आंसर लगा लिए थे द फैक्ट इज़ दैट आपने जितनी अच्छी तरह इस मैकेनिज़्म को समझ लिया आपका आंसर एक्यूरेट होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ गए और आप सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हो वेयर यू नो दैट द आंसर इज़ गोइंग टू बी सो do not read unnecessarily. It will really help you to manage your time because time management is very important in IELTS academic. उन बच्चों का रीडिंग में स्कोर कभी भी अच्छा नहीं आता जो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते बिकॉज उनके हमेशा 5-10 क्वेश्चंस रह जाते हैं और 1 आवर पूरा हो जाता है एंड विद माई स्ट्रेटजीज यू विल सर्टनली स्टार्ट डूइंग एटलीस्ट 5 मिनट्स बिफोर टाइम और उसकी मेन स्ट्रेटजी ही ये है दैट वी रीड ओनली where the answer is and only that much what is important. So unwanted information को read करना कीजिए बंद and you are definitely going to score good bands in the IELTS reading part. That's pretty much all from my side and I will catch you very shortly with more interesting and useful videos related to IELTS. Take care of yourself. Bye-bye.